پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی کال دیں گے اور تحریک انصاف سڑکوں پہ نکل آئے گی۔ یہ سارے پروٹیسٹ کے لیولز ہی ہیں، ان کو آپ احتجاج کے لیولز ہی سمجھیں۔ یہ جدوجہد بڑھ رہی ہے، تحریک کا مقصد فوکس بالکل کلیئر ہے، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی رہائی۔ بانی تحریک انصاف ناراض ہیں اپنی جو ان کی قیادت باہر ہے، اسی وجہ سے وہ چینجنگ بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں تو انٹرنل میٹرز کے اندر بالکل ہی، میں تو گراؤنڈ پر ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں۔ میرے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے میں نے اس کو کرنا ہے، میں نے اس میں خان صاحب کو 100/100 اپنی طرف سے کوشش کر کے رزلٹ دینا ہے۔ یہ ڈیٹس دی جاتی ہیں، میں پہلے آپ کو بتا دوں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، کوئی ڈیٹس نہیں ہے، رہائی ہوگی سب کے سامنے ہوگی، انہی عدالتوں کے تھرو ہوگی، اس کے علاوہ تیسرا کوئی پروسیس نہیں ہے۔ 26 نومبر کو جو آپ نے گولیاں چلائی، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ رک نہیں رہی۔ ہم نے ڈرا دیا، ہم نے ان کو مار دیا، ہم نے ان کو ان کے گھروں پر رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ آپ ایسا کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ پبلک ڈیجیٹل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ولید مختار۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو دی جانے والی سزا معطلی کا جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آج ہم ایک غیر معمولی ماحول جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ماضی قریب میں جب پاکستان تحریک انصاف سراپائے احتجاج ہوتی تھی، سڑکوں پہ آتی تھی، اس وقت یہ ماحول نظر آتا تھا۔ آج بھی پی ٹی آئی کے ورکرز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جانیں گے عدالت سے سزا ہو گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ آگے کارکنان نکل آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، یہ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہمارے لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ خان صاحب کی پیشی ہو تو ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے ایم این اے نے ضرور آنا ہے، اور ہمارا کارکن تو ویسے کس سے پیچھے نہیں رہتا۔ لیکن جو یہ سلسلہ ہے، مجھے افسوس کی بات یہ لگتی ہے کہ آپ کو انصاف کے لیے اس دروازے کی باہر ہم کھڑے ہیں، اور ہم پچھلے کئی ہفتوں سے یہاں آ کر صرف ایک ڈیٹ فکس نہیں کرا پا رہے تھے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف نیچرلی نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ یہ کیا عدالت کا اپنا کام نہیں ہے؟ اس کے لیے کیا آپ کو پورے پاکستان سے یا پورے پنجاب سے منتخب نمائندوں کو لا کر کھڑا کرنا پڑا؟ پہلا سوال تو ہمارا اس معزز عدلیہ سے یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں انہیں عوام نے چنا ہے، یا آج آپ کے سامنے آ کر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو انصاف دیں، انصاف پر مبنی فیصلے کریں؟ اچھا، ہم نے دیکھا میڈم کہ 26 نومبر کا جو احتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے بعد ہمیں اس کی انٹینسٹی کم ہوتی نظر آئی۔ اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی کال دیں گے اور تحریک انصاف سڑکوں پہ نکل آئے گی۔ اصل کیا ہے؟ کب آپ نے نکلنا ہے؟ کیسا پروٹیسٹ ہوگا؟ اچھا، دیکھیں، یہ سارے پروٹیسٹ کے لیولز ہی ہیں، ان کو آپ احتجاج کے لیولز ہی سمجھیں۔ یہ جو آپ کو ایک پرامن طور پر ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں، لاہور میں جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سمڑیال ایک سنگ میل تھا۔ یہ جدوجہد بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھتی جائے گی۔ جیسے آپ کو نمبر بڑھتے نظر آ رہے ہیں نا، ایسے یہ پوری تحریک چل رہی ہے، اور تحریک کا مقصد فوکس بالکل کلیئر ہے، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی رہائی۔ ایک پرسپشن ہے یا ریالٹی کے قریب ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں گی کہ بانی تحریک انصاف ناراض ہیں اپنی جو ان کی قیادت باہر ہے، اسی وجہ سے وہ چینجنگ بھی کرنا چاہ رہے تھے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو انٹرنل میٹرز کے اندر بالکل ہی، میں تو گراؤنڈ پر ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں۔ بیسیکلی جب آپ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کا کوئی اتنا خاص تعلق ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا، میرے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے میں نے اس کو کرنا ہے، میں نے اس میں خان صاحب کو 100/100 اپنی طرف سے کوشش کر کے رزلٹ دینا ہے۔ جو آپ فیصلہ کریں گے کیا میں دے پا رہی ہوں یا نہیں دے پا رہی، یا ہمارا کارکن فیصلہ کرے گا۔ میں بار بار یہی کہوں گی کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کے اندر اختلاف نہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے۔ جہاں تک دیکھیں وزیر اعظم خان صاحب کی بات ہے، وزیر اعظم خان صاحب 2 سال کی سخت ترین جیل برداشت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کی اتنی عید اندر ہو، آپ کی اہلیہ کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہو، یہ چیزیں بہت، میرا تو یہ خیال ہے کہ جو خواتین کے چیمپئنز ہیں، جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، کیا وہ یہ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ کون سے ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ فرمائیے گا لاسٹلی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تاریخیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ 5 جولائی کی ایک ڈیٹ چل رہی ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے،
माजी करीब में हमने देखा कि बहुत नज़दीक था ये सारा प्रोसेस कि इमरान खान को रोल पे रिहा कर दिया जाए। कोई ऐसी चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी कॉल देने जा रही है आने वाले दिन? देखें जी, इंशाल्लाह बड़ी ही कॉल होगी, लेकिन दूसरी जो ये बात है, जो ये डेट्स दी जाती हैं, मैं पहले आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कोई डेट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रिहाई होगी, सबके सामने होगी, इन्हीं अदालतों के थ्रू होगी, उसके अलावा तीसरा कोई प्रोसेस नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज इंशाअल्लाह ताला बुशरा बीबी साहिबा को ज़मानत मिल जाए, वज़ीर आज़म खान साहब को इस केस में ज़मानत भी मिल जाए। बीबी साहिबा का ये केस है, अल्लाह करे, अल्लाह मियाँ आसानियाँ भी करे और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले भी करवाए, तो वो तो उनकी रिहाई अल्लाह करे आज मुमकिन हो जाए। और उसके बाद लाहौर आमीन सुमामीन, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जो वज़ीर आज़म खान साहब के केसेस हैं, हम तो उनके पीछे भी जाएंगे, तहरीक भी चलाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी तहरीकों में जाती है, अगर हम तहरीकों में नहीं जाएंगे मतलब हमारी तो है ही ये फरमाइएगा, एक तरफ आप फरमा रही हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पे खान साहब का केस फिक्स नहीं होता, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि इन्हीं अदालतों से आपको उम्मीद है। कैसे ये मुमकिन होगा कि जहाँ केस सुना नहीं जाता वहाँ से इंसाफ भी हो जाए? देखें, आपने ये देखा है ना कि हम उसके बावजूद हर दफ़ा अदालतों में पेश होते हैं, उसके बावजूद हम हर दफ़ा पिटिशन लेकर कभी चीफ जस्टिस के पास जाते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं। मुझे एक बात बता दें, एक सियासी पार्टी हर आईनी कानूनी तरीका आजमाएगी, उसके बाद हम तो इस सिस्टम को एक्सपोज़ करें, हम तो इस सिस्टम को एक्सपोज़ करके ये कह रहे हैं। और अब उस नारे की समझ आती है जब खान साहब कहते थे एक मुल्क और दो कानून, गरीब के लिए कुछ है, ताकतवर के लिए कुछ है। तो आप ये देख लें कि आपको नज़र आ रहा है ना, इक़्तिदार में बैठने वालों के लिए कानून ये है कि आपको एयरपोर्ट पर आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, आपके प्लेटलेट्स गिरते हैं, आपको 4 हफ्ते के लिए जो है वो लंदन रवाना कर दिया जाता है। दूसरी तरफ क्या है, एक वज़ीर आज़म जो 180 सीटों वाला है वो जेल में बैठा है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, हम बार बार इनको यही बता रहे हैं कि आप हमारे लिए ऑप्शंस स्क्वीज़ कर रहे हैं, आप हमारे लिए ऑप्शंस कम कर रहे हैं। हमें उन ऑप्शंस को प्लीज़, पॉलिटिकल पार्टियां कोई मिलिटेंट विंग्स नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टियां आईनी कानूनी रास्ते अपनाती हैं, पुरअमन एहतजाज के रास्ते अपनाती हैं। पीटीआई की परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, फितना है, इंतशारी है, नज़र क्या आया? पीटीआई पुरअमन। समाबिया तायरा साहिबा जो हमें एहतजाज में बड़ी वाइब्रेंट नज़र आती हैं, क़यादत करती नज़र आती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आज एक बार फिर एहतजाज का माहौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बना है, क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना कुछ चाहूँगी जी कि आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि 26 नवंबर को जो आपने गोलियां चलाई, आपने स्ट्रेट फायर किए हमारे लोगों पे, हमारे लोगों को शहीद किया, लेकिन उसके बावजूद अवाम जो है वो रुक नहीं रही, अवाम बार बार निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो खौफ का बुत जिसकी बार बार आप वो करते हैं ना कि हमने डरा दिया, हमने इनको मार दिया, हमने इनको इनके घरों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया, आप ऐसा कुछ करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अवाम अब भी निकलती है, बिना किसी कॉल के निकलती है, इमरान खान के लिए निकल रही है, असीरान जमहूरियत के लिए निकल रही है। ये बार बार निकलेगी और ये तब तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक वो अपने कायद कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाजी को रिहा नहीं करा। हम ये देख रहे हैं मैडम कि जो 26 नवंबर गुज़िश्ता साल एहतजाज हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों की इंटेंसिटी कम हो गई थी। अब क्या कोई बड़ी कॉल देने जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या फिर इसी तरह के छोटे मोटे एहतजाज? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने लास्ट टाइम भी किसी प्रोग्राम में कहा था, मुझे याद नहीं है कौन से में, लेकिन यहीं इसी जगह पे खड़े होकर मैंने बात की थी कि तहरीक जो होती है ना, जो फ़ाइनल कॉल होती है, फ़ाइनल कॉल का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो 1 दिन की है, वो 2 दिन की है, वो 3 दिन की है, वो महीने की है, वो 2 महीने। नो, आपकी फ़ाइनल कॉल का मतलब होता है डिफरेंट फेजेस। आपकी तहरीक है ना, आपकी मूवमेंट है, तो आपकी मूवमेंट में आपने वो फेजेस क्रॉस करने हैं। हमारा फेज़ कौन सा था? हमारा फेज़ था कि जो हमने 26 नवंबर तक 24, 25, 26 3 दिन हम फाइट करते रहे। ठीक है, 26 को इनको तब सुकून आया जब इन्होंने गोलियां चला दी। ठीक है, हमारे वर्कर को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉल ऑफ हुई। ठीक है, मगर वो महदूद अरसे के लिए कॉल ऑफ हुई थी, ऐसा नहीं था कि वो बंद हो गई थी, तहरीक ख़त्म हो गई थी। तहरीक का सेकंड फेज़ अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिसमें आप देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलीज़ हो रही हैं, डिफरेंट चीज़ें, सेमिनार्स हो रहे हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड है। आपका थर्ड फेज़ वो है जिसकी कॉल इमरान खान ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इमरान खान उसको लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला फ्रॉम द जेल। ठीक है, तो जब इमरान खान किसी को लीड करेंगे
تو सोचें कि क्या आलम होगा, क्या अवाम का जो है वो समंदर होगा, किस तरह जो है अवाम निकलेगी जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, अदलिया की बहाली के लिए, अदलिया के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ कौन निकलने वाला है? इमरान खान और उनकी जमात निकलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हमें जो है वो फ्रंट पे नज़र आती हैं जब भी कॉल दी जाती है। आम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है उसे ज़ाहिर इन टेक्निकलिटीज़ से कोई गर्ज नहीं, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि इमरान खान की रिहाई कब हो रही है। तो आप कुछ बता सकती हैं कि आने वाले कितने महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खुशखबरी मिलेगी? देखिए, मैं इसमें ना एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी आपके चैनल के तवज्जुद से, अपने तमाम जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, लोग हैं जो टिकट होल्डर्स हैं। देखें, पब्लिक कब निकलती है? पब्लिक तब निकलती है कि जब जो है आप उनको यकीन होता है कि हमें कोई लीड करने वाला है आगे, ठीक है, तो पब्लिक निकलेगी। देखिए, यहाँ पर जितने MNAs MPAs हैं जो निकलते हैं, ठीक है, उनके साथ अवाम निकलती है और अवाम जो है वो बताती है कि हम अपने लीडर के साथ हैं, उस लीडर के साथ हैं, और जिसको आपने हमारा MNA बनाया, MPA बनाया, हम उसके भी साथ हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो वोट इमरान खान के नाम पे आपने लिया, उस वोट की हिफाजत आपने ऐसे करनी है कि आपने इमरान खान को बाहर लाना है। सो आप जब अपने वर्कर्स को इंगेज रखते हैं और जब मोटिवेटेड रखते हैं, तो आपका वर्कर आपसे क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हम उस तहरीक में शामिल हैं, हम ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो दिस इज़ इट, दिस व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली। बाकी ये कि जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है वो स्टार्ट हुई है, ऑलरेडी हुई है। मैंने आपको कहा है दिस वुड बी द थर्ड फेज़। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जिस दिन कॉल इमरान खान ने दे दी ना, और वो मुल्क गिर एहतजाज होगा, वो डी चौक वाला एहतजाज नहीं होगा, वो फैसलाबाद वाला एहतजाज नहीं होगा, वो पिंडी वाला एहतजाज नहीं होगा, वो लाहौर वाला एहतजाज नहीं होगा, वो मुल्क गिर एहतजाज होगा। यानी आपके पूरे मुल्क में जो है एक वक्त में एहतजाज किया जाएगा। उसकी क्या शेप हो सकती है, क्या किस्म हो सकती है, वो हम यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन यकीन जानें कि इस बार जो आपका मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है वो बहुत डिफरेंट है, और उसमें आपको नज़र आएगा कि इमरान खान वाकई में लीड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, जिसकी स्ट्रेटजी बानी PTI और PTI के पैटर्न इन चीफ इमरान खान जो हैं वो जेल से मुरतब करेंगे। जी।